In order to convert complex electrical circuit into simpler one, scientist Kirchhoff gave two laws that is so called as Kirchhoff's law of electrical circuit. Previously, in unit number 2, that is current electricity, we had already studied the topic about current. Simply, current is what? The rate of flow of charge is so called as current. The rate of flow of electrons is so called as current. In that chapter, if we have to apply the potential difference across the ends of conductor and their all the physical quantities will be constant, then what will happen if all the physical quantities of any conductor is constant? Then what will happen? The potential is directly proportional to current. Removing the sign of proportionality, we will get the constant denoted by R, that is so called as resistance. Resistance is the opposition. Resistance is the obstacle which is produced in the path of the flow of current, and such type of law is so called as Ohm's law. If we plot a graph between potential and current, definitely you will get a straight line passing through the origin. That is the Ohm's law. In that chapter, two things is very important. Three things. First one is battery. The battery voltage is EMF of the cell. Secondly, it's current. The third one is the wire or the tar having resistance R. If you are connected more than two batteries or maybe two batteries, then definitely you will determine the total voltage. डेफिनेटली तार है तो आर है और बैटरी है तो इनका करंट भी है. जब ओम्स लॉ कहता है कि एक बैटरी का वोल्टेज E1 इज इक्वल टू I1 R1, दूसरी बैटरी का वोल्टेज इक्वल टू I2 R2, तो अगर दोनों बैटरियों को जोड़ देंगे तो इसका सम करेंगे तो इसका भी. दूसरी बात, किसी सर्किट पर अगर कहीं से करंट आएगा तो definitely that current will distribute in so many parts. Suppose that you have a board and in that board some part of current is coming. Today we are discussing yesterday topic. Some part of current is coming, then definitely some part of the current will be utilized from that board. So the total incoming current in that board will be equal to the total outgoing current in that board. Isn't it? Yes or no? Yes, okay. For that complex electrical circuit, we have to convert a simpler electrical circuit. हम अपने घरों में भी अगर बिजली का कनेक्शन होता है तो हम कठिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक मतलब कर दो, कठिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को सरल बनाती है बस. और कठिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को सरल बनाने के लिए हमने नहीं, इस चैप्टर में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में साइंटिस्ट किरचॉफ गिव टू लॉज व्हिच इज सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. व्हाट इज दैट? बहुत बढ़िया. तो किरचॉफ नाम की साइंटिस्ट ने कठिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को सरल बनाने के लिए गिव टू लॉज व्हिच इज सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये गिनती में दो थी. एक उसका पहला लॉ जिसको उसने कहा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या करंट लॉ या जंक्शन लॉ. ठीक.
करंट लॉ कह रहे हैं मतलब दिस लॉ इज रिलेटेड विद करंट। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई बोर्ड है, बोर्ड मतलब जंक्शन बोर्ड, उस पर हो सकता है एक तरफ से करंट आ रहा हो सकता है बैटरी से भी आ रहा हो सकता है घर वाली बिजली एसी भी हो, और उसका उपयोग आप कई जगह कर रहे हैं, जैसे पंखे में, कूलर में, टीवी में, इजंट इट, हर जगह आप उपयोग कर रहे हैं। तो आप इसको बोलेंगे द टोटल I1 करंट, I1 इज कमिंग, सपोज दैट आउट I2 इज गोइंग, I3 इज गोइंग, I4 इज कमिंग एंड I5 इज गोइंग। आने वाला पॉजिटिव और जाने वाला अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ the algebraic sum of all the current must be equal to 0। वो कहता है कि किसी जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब हम प्रूव करेंगे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। लेकिन जो चीज हमें मिलती है वो पॉजिटिव में मिलती है, और जिसको हम खो देते हैं, कोई नबी में खो देता है, कोई 10वीं में खो देता है पेंसिल, तो वो नेगेटिव है, और जो पाया वो पॉजिटिव है। तो I1 इज आया, दैट इज I2 गया, I3 गया, दैट विल बी नेगेटिव, I4 आया, दैट विल बी पॉजिटिव, I5 दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। 100 एम्पीयर का करंट बोर्ड पर आया, 100 ही उपयोग हो गया, तो बोर्ड पर कितना बचा, 0। यस और नो, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जंक्शन है तो जंक्शन लॉ, करंट है तो करंट लॉ, फर्स्ट लॉ था तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ शुरू दिया ऐसे। नेगेटिव वालों को इस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव वालों को यहीं छोड़ दो। I1 plus I4 is equals to I2 plus I3 plus I5। दिस इज टोटल इनकमिंग करंट, दिस इज टोटल, तो सिद्ध हो गया टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दिस इज किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और करंट। नाउ द सेकंड टॉकिंग इज दैट सपोज दैट वी हैव 2 or more than 2 बैटरीज। जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक बैटरी हैं तो उन दोनों बैटरीज की EMF को आप जोड़ेंगे, और उन दोनों बैटरीज का EMF जुड़ेगा तो I1 R1 और I2 R2 भी जुड़ेगा। तो बस बैटरीज के कनेक्शन के लिए जोड़ेंगे तो लूप बन जाएगा, क्लोज लूप मतलब क्लोज सर्किट बन जाएगा, और क्लोज सर्किट बन जाएगा मतलब किरचॉफ्स का वो दूसरा लॉ आ जाएगा। ये सारी चीजें किरचॉफ्स के दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग बताएं। समझ में नहीं आता क्या यार? ठीक है, तो किरचॉफ्स का तो बेटा फोकस यहाँ होना है, ना कि दुनिया पे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सिंपल सी बात है, इजंट इट? ऑनलाइन वाले भी सुन लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट डालें और शेयर भी करें। तो सिंपल सी बात है, ये उन बच्चों के लिए है वीडियो जो निःशुल्क घर पे पढ़े, कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल सी बात है, आप पढ़ सकते हैं, और क्या, सबके लिए दरबार खुला हुआ है, इंडिया की किसी भी कोने में बैठ के पढ़िए। सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है, बस आपकी ये सर पाउडर नहीं लगा। तो अब बात करिए किरचॉफ्स की सेकंड लॉ, या फिर वोल्टेज लॉ, या फिर लूप लॉ। तो पहली बात तो लगा दो का बैटरी, दूसरी भी लगा दो का, तीसरी बिल्कुल मत लगाओ, तार लगा दो। इससे आएगा करंट, बैटरी का EMF, बैटरी का EMF, इससे आएगा करंट I2, दोनों नीचे उतरेंगे तो सिंपल सी बात। कितने लूप बन रहे हैं? ABCDA, एक EF, दूसरा लूप E, तीसरा लूप O। सबसे पहले लूप की बात करेंगे। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा कर दूंगा, अब दिख रहा है? ठीक। देखिए यहाँ बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट लूप, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लूप? राहुल, कपिल यादव, बताओ फर्स्ट लूप।
A B C D A A B C D A Muskan, if you get it? Okay. Shruti. Naina. Have you get it, girls? Yes, sir. Boys? Yes, sir. ओके सो फर्स्ट लूप में जितनी भी बैटरी है पहले उनको लिख लो और जितने भी करंट और रेजिस्टेंस है उनको लिख लो। तो फर्स्ट लूप में कितनी बैटरी नजर आ रही है? 2। कौन कौन? साइन मत लगाओ बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव। दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ए से बी गए कौन मिली? बी से सी गए कौन मिली? कौन मिली? सी से डी गए कौन मिली? I2 R2। वेरी नाइस। तो I2 R2। अब मैंने आपसे कहा था आप ए से बी जा रहे हैं, बैटरी का बाद में जो टर्मिनल मिलता है वही ईएमएफ की वैल्यू होती है, तो द वैल्यू ऑफ E2 विल बी नेगेटिव। बी से सी आए, सी से डी आए, बाद में क्या मिला? दैट विल बी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू I1 R1। आप जहाँ जा रहे हो वो भी वही जा रही है, कौन? करंट। तो वैल्यू पॉजिटिव, आप ऐसे जा रहे हो वो ऐसे आ रही है, तो आप ऐसे जा रहे हो और करंट बैटरी से ऐसा निकल रहा है, इसलिए नेगेटिव। आप बी से सी उतरे, सी से डी आए, करंट भी ऐसी आ रही है, और नो दैट विल बी दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। नेट EMF will be equal to the algebraic sum of the product of all the individual current and resistance। मतलब किसी क्लोज लूप में कुल EMF की वैल्यू उस क्लोज लूप में प्रेजेंट समस्त करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होती है। Isn't it? Yes or no? Isn't it? Are you get it, guys? Yes or no? Yes। Okay. Now second loop। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। Yes, रिजू। What is the second loop बेटा?